Hello, my dear children. So, in the part 1, we have explained what is habitat, what is adaptation, what are the two types of habitat that are terrestrial habitat and aquatic habitat. And then we talked about two types of components that are biotic component and abiotic component. If you have any doubt in that, you can check that part 1 video. So here in this textbook, you can see something is written in a box. Let's see what is this. So हमने बोला एडेप्टेशन ये होता है जब कोई हैबिटेट में कोई भी जानवर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने के लिए क्या क्या चेंजेस उनके बॉडी में होता है तो उसे हम एडेप्टेशन बोलते हैं. ओके सो बट इट इज़ टेकन प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ऐसे नहीं कि कल हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं कोल्ड एरिया में जा रहे हैं तो हम लोग स्वेटर पहन लिया तो वो अडेप्टेशन हो गया, ऐसे नहीं बोलते. अडेप्टेशन मतलब ये होता है जो ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो बॉडी में मतलब एक हैबिटेट में सूट करने के लिए व्हाट आर ऑल द चेंजेस हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड द अडेप्टेशन. So next one, an important word here it is written is acclimatization. What is acclimatization? Acclimatization means you know that there are some change that can happen in an organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surroundings. For example, if you're living in a plain region and if you're suddenly moving to a high mountain regions, आप लोग एक प्लेन रीजन में आप लोग रह रहे हैं और अचानक से आप लोगों को माउंटेन रीजन में जाना पड़ा. 1-2-3 दिन या थोड़े दिन के लिए आप लोग को माउंटेन रेंज में रीजन में रहना पड़ा. तो आप लोग क्या करेंगे, हमें पता है जब माउंटेन रीजन में होता है हमें ब्रीथिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ते हैं, इज़न्ट इट. क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, हाई एरिया प्लेन से एक माउंटेन रीजन में जाएंगे तो वी विल फेस डिफ़िकल्टीज इन ब्रीथिंग. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं, इज़न्ट इट. वी आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डेज सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर ब्रीथिंग, है ना. हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज सब कुछ इसलिए करते हैं हमारा ब्रीथिंग कैपेसिटी को फास्टर करे, द ब्रीथिंग विल गेट फास्टर. And after some days, what happened? Our body adjusts to the changed condition on the high mountain. तो अब बहुत थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी उस कंडीशन को, वो हाई माउंटेन कंडीशन को एडजस्ट करने के लिए चेंज हो जाता है. ओके सो सच स्मॉल चेंजेस टेकन प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्टर पीरियड, मतलब कुछ पल के लिए, मतलब जैसे हम बॉडी वार्म अप करेंगे ऐसे कुछ एक्सरसाइज करके हमारे ब्रीथिंग को हम एनहांस करेंगे. सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस, दैट टाइप ऑफ change is called acclimatization. What is that? Acclimatization. Clear what is meant by acclimatization? Okay. So what is meant by acclimatization? There are some changes that can happen in an organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surroundings. So is that clear? Now let's talk about what is germination. You know that what is germination, isn't it? So in activity 2, it is telling that please recall the activity 5 in chapter 1. हम activity 5 chapter 1 में हमने एक germination process हमने किया था, sprouting के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने. We have learned about sprouts and how the sprouting process, everything we have learned. Okay, so when the seed turned into a sprouts, it is said to have germinated. So what is called germinated? Germinated मतलब क्या है? When the seed turned into a sprout, it is said to have germinated. जब एक sprout sprouts में बदलते हैं तो हम बोलते हैं it is germinated. And this is the beginning of life of a new plant. वो तो हमें पता है. So this is the beginning of life of a new plant. So you know about the germination. Here you are having a small activity. तो हम activity क्या है हम देखते हैं. Collect some dry moong seed, keep 20 to 30 seeds aside and soak the rest. इसमें ये बोला है हम लोग एक ड्राई मूंग सीड्स हम लेना है हाथ में. वी हैव टू कलेक्ट सम ड्राई मूंग दाल का सीड लेना है.
देन व्हाट वी हैव टू डू, उस सीड में से आप एक हाथ में थोड़ा सीड लेना है, वहाँ से 20 to 30 सीड आप लोग एक साइड में रखना है और बाकी का सीड को क्या करना है, उस सीड को हम सॉक करना है, पानी में सॉकिंग करना है। तो वो इधर लिखा है द सीड नॉट सॉक्ड इन वाटर, दैट इज ये 20 to 30 सीड्स को हमने हटा के रखा है ना, तो वो हमने सॉक नहीं किया है। तो अगर उसको हम सॉकिंग नहीं किया, डज इट जर्मिनेट, जर्मिनेशन होता है, वो सीड ऐसे ही रखा है, ऐसे रखेंगे तो जर्मिनेशन होता है, स्प्राउट्स बनता है नहीं। सो दैट यू नो दैट द सीड डज नॉट जर्मिनेट, है ना, जर्मिनेट नहीं होता है। तो उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अभी नेक्स्ट सेशन में क्या किया है, सीड सॉक्ड इन वाटर, जो वाटर में सॉक किया वाला सीड को हम क्या करना है, उसको 4 हिस्से में डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड दम इनटू 4 पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू कीप इट इन अ डार्क रूम। क्या करना है, एक डार्क रूम में रखना है। और दूसरा कहाँ पे रखना है, दूसरा जो सोक किया वाला को उठा के उसको हम सनलाइट में रखना है। एंड द थर्ड पार्ट वी हैव टू कीप इट इन अ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, आइस में रखना है, हमारे फ्रीजर जो होता है ना, फ्रीजर में रखने के लिए बोला है। एंड द लास्ट वन, द फोर्थ पार्ट वी हैव टू सबमर्ज इन वाटर, वाटर में डाल के रखना है, पानी में ही डाल के रखना है, ठीक है। तो हम चलो देखते हैं इन 4 सिचुएशन में हाउ डज दिस जर्मिनेट्स और हाउ डज दिस सीड रिएक्ट्स, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमें पता है डार्क रूम में है तो जर्मिनेशन अच्छी तरह से होता है, क्योंकि हम लोग स्प्राउटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था, है ना, टेक सम वाटर एंड सॉक इट द सीड फॉर अ डे एंड नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर एंड रैप इट इन अ वेट कॉटन क्लोथ, हम ऐसे बोलते हैं ना, ठंडे रूम पे हम रखते हैं सो दैट द जर्मिनेशन अच्छी तरह से होता है, इजंट इट। सो उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट केस आता है सनलाइट में। सनलाइट में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, सॉक किया वाला हम धूप में रखेगा तो क्या होता है, सीड जैसे बाहर रखते हैं ऐसे ड्राई अप हो जाता है, सो इट डज नॉट जर्मिनेट। एंड व्हाट हैपन टू द सीड दैट वी केप्ट इन द फ्रिज और वी कैन से द फ्रीजर, आइस में रखेगा तो क्या होगा, इट डज नॉट जर्मिनेट। एंड दूसरा एंड द लास्ट वन इज दैट सबमर्ज्ड इन वाटर, हम पानी में डाल के रखेगा तो क्या होगा, जर्मिनेट तो होगा ही बट गिव अ फाउल स्मेल, बहुत एक गंदा स्मेल आने लग जाता है ना, सड़े हुए स्मेल आने लग जाता है, लेकिन जर्मिनेट होते हैं। तो इस एक्टिविटी से आप लोगों को क्या पता चला, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी। In this activity shows us that abiotic factors like sunlight, air, temperature and humidity play an important role in the growth of an organism. मतलब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए अबायोटिक फैक्टर्स भी उतना ही ज़रूरत है जैसे बायोटिक components का है. So this activity depicts that the important role of abiotic factors. So now it's clear what is the activity number 2.